اپوزیشن کا سمپل ایک اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو سینٹ الیکشن ہے یہ آئینی اور قانونی معاملہ ہے, آپ لوگ اس کو سیاست کی نظر نہ کریں, اور اگر آپ پھر بھی چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈز ہونا چاہیے تو آپ اس اپوزیشن کو ساتھ بٹھائیں, مل کر ایک ترمیم کر لیں سر, جھگڑے کو ختم کریں. اچھا 2-3 باتیں ہوئی ہیں کیونکہ آپ نے موسیٰ نے بھی کوئی بات کی ہے, طارق فضل چودھری صاحب نے بات. دیکھیں خان صاحب یہ چیز آج سے نہیں کہہ رہے, خان صاحب یہ چیز شروع سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے اس سے پہلے جو الیکشنز ہوئے ہم نے اپنے 20 ممبرز نکالے جن پہ شک تھا ہمیں انہوں نے پیسے لیے, ٹھیک ہے, ہم اس چیز کو متواتر کہتے آ رہے ہیں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہماری ایک بھی سیٹ نہ ہو کے پی کے اندر اور ہم اونرشپ لے لیں کہ ہم نے اسمبلی توڑ دی, ٹھیک ہے, ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں, جب ہم کرکٹ میں تھے تو ہم کہتے تھے ہم نیوٹرل پرائز لے کے آئیں گے, ہم آئی سی سی کے پاس گئے, ہماری بات مانی کہ پوری دنیا میں نیوٹرل پرائز پہ گیم چلتی ہے, کرکٹ ہو رہی. اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں شو آف پہ ہینڈز پہ ہو. یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ٹھاک کہ اس وقت آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ شو آف ہینڈز کے اوپر آپ کرا سکتے ہیں. ہمیں اپوزیشن کہتی ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی ہے, وہ کہتی ہے, ہم کہتے ہیں اوکے فائن, اسپیکر آفس ہے آپ ادھر آ کے بیٹھ جائیں, ہم کہتے ہیں این سی او سی ہے آپ ادھر آ کے بیٹھ جائیں, یہ کہتے ہیں ہم نہیں بیٹھیں گے. تو حکومت نے ایک طریقہ نکالا ہے کہ دیکھیں اگر میں گورنمنٹ میں ہوں, پارس آپ کور کرتی رہی ہو اتنے عرصے سے, سب سے زیادہ ایج کس کو ہے, زیادہ سینیٹرز کس کے بن سکتے ہیں, گورنمنٹ کے نا, جی انفلوئنس زیادہ ہو سکتا ہے نا شو آف ہینڈز, پہلے 2 ہاتھ کرنا چاہ رہے ہیں. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ زیادہ سینیٹرز بنا سکتے ہیں نا, اس کے باوجود ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ شو آف ہینڈز ہو, پر یہ لوگ نہیں مان رہے. ہم کہتے ہیں یہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تھی پہلے, نہیں دیکھیں اس میں پھر فیٹف کا بل ہوا, اس میں ان کے ساتھ کیا ہوا, باقی ساری چیزیں, میں اس چیز میں نہیں جانا, میں اوور آل ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اب انہوں نے کہا آئین کے اندر ہے نا, ان کو جو چیز اچھی لگتی ہے نا اچھا آپ گندا اب استعفیٰ دینے کا طریقہ کار بھی آئین کے اندر درج ہے. کس نے کہا ہے کہ آپ اپنی جو خود پارٹی کی ایک وائس پریزیڈنٹ ہے, ایک وہ بھائی جس نے ایک پارٹی کاغذ پہ لی ہوئی ہے, اس کے ہاتھ میں جا کے استعفے دینا آئین میں درج ہے بھائی, اسپیکر کے پاس جاؤ, ان کی پارٹی ان کی مرضی. تھینک یو ویری مچ. اگر یہی چیز میں کہوں کہ ہم چاہتے ہیں, ہماری پارٹی یہ چاہتی ہے, ہم دیکھیں پارٹی دیکھیں ایز این پرائم منسٹر عمران خان چیئرمین تحریک انصاف بھی ہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم چیزیں بہتر کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں, یہ پلیٹ فارم آج بھی حاضر ہے پارس, آپ میں یہ دونوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ نہ بیٹھیں ہمارے ساتھ. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چیز ٹھیک ہے, سی او ڈی کا حصہ تھی ہے جو آپ نے سائن کیا, ساری پارٹیز نے مل کے آپ نے اس کو اون کیا, چاہے وہ الگ بات ہے کہ پی سی او ججز پہ آپ پیچھے ہو گئے, پر پھر بھی اگر آپ اس سی او ڈی کا حصہ ہے یہ, تو آپ اس میں تجاویز دے دیں کہ سی او ڈی میں یہ کلوزز تھی, یہ آپ ایک ترامیم لے کے آئیں یا پریزیڈنشل ریفرنس کے تھرو جائیں. ہم 2018 کے الیکشن متنازع ہوئے آپ کے انہی تمام چیزوں کی وجہ سے, اب یہ جو سینٹ الیکشن ہے نا وہ بھی اس تنازع کا شکار ہو جائیں گے. ان کو بٹھائیں, اگر وہ نہیں بیٹھ رہے ان کو دعوت دیں. صرف یہ ہم نے ساری زندگی دھاندلی کے نعرے سننے, اس پلیٹ فارم سے دونوں بھائیوں کی پارٹیز کو دیکھیں, اسپیکر آفس سب سے بڑا آفس ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر, ان کے تھرو ہم نے ان کو بلانے کی کوشش کی, انہوں نے بائیک آؤٹ کیا. پھر این سی او سی کا پلیٹ فارم ہم نے یوز کرنے کی کوشش کی, انہوں نے اس کا بائیک آؤٹ کیا. دعوت دے دیں, پھر دے دیں گے, پارس کے کہنے پہ ہم دے دیں گے, ایک سیدھے کہنے پہ نہ کریں, یہ ضرورت ہے وقت کی. یہ چیز سمجھ رہی ہیں کیونکہ جو ان کے ساتھ ہو گیا ہوا ہے, اب یہ شاید آ جائیں گے مذاکرات کرنے مل کے. کیا کہہ رہے ہیں, ایک سی او ڈی ان کے ساتھ مل کے سائن کر لیں. سی او ڈی تو آلریڈی موجود ہے نا. اگر سی او ڈی پہ ہوتے تو پی سی او ججز کے لیے تحریک چلاتے, اگر یہ سی او ڈی پہ ہوتے کالا کوٹ پہن کے عدالت جاتے, اگر سی او ڈی پہ ہوتے تو بلوچستان کی گورنمنٹ ختم کرتے, اگر سی او ڈی پہ ہوتے تو حسین حقانی صاحب نے جو کیا تھا اس کو دوسرے صاحب نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ. یس اللہ, دیکھیں ان کی نیت میں فطور ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو دس تھنگ, یہ پاکستان کو آگے جاتا دیکھ نہیں سکتے. اس کا مسئلہ کیا ہے, پارس صاحب کے سامنے ہے. مجھے ایک بات بتائیں, سر یہ دشمن ہے پاکستان کے, یہ پاکستانی نہیں ہے. نہیں اس طرح نہیں میں کہہ رہا, نہیں میں نہیں کہہ رہا, اس طرح نہیں, کوئی پاکستان کا دشمن نہیں ہو سکتا. آئی نیور ایور, یہ میں نہیں مانتا, سوچ بھی نہیں سکتے پاکستان کا. بالکل صحیح بات ہے, یہ پارس میں آپ کے ساتھ ہوں, میں اس طرح بات نہیں کر رہا. پر دیکھیں اپنے سٹیکس ہیں نا پارس, اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے, مہنگائی ہو گئی, یہ کہتے ہیں کہ پاکستان آگے کی طرف نہیں بڑھ رہا, اور ہم کہتے ہیں کہ فیٹر پہ بیٹھتے ہیں, چلیں اس پہ مذاکرات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نیب کے 34 کلوزز چینج کر دو. ابھی کہیں گے, ابھی بتا رہا ہوں, ابھی دوبارہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے, اوکے ساری چیزیں شو آف ہینڈز ہمارے لیے فائدہ ہے. اچھا عمران خان این او کب دے گا, جب یہ کہیں قوم کو بتائیں. اچھا پھر ادھر سے کہیں گے آرمی چیف مداخلت کب کرے گا, پھر کہیں گے اچھا کچھ اس طرح کا کام کریں کہ کورٹس ہماری اطاعت دوبارہ شروع کر دیں. یہ دیکھیں پھر ابھی تک ان کی کوئی ڈائریکشن, کوئی ویژن, کوئی کی چیز نظر آئی ہے. پارس مجھے بتا دیں, کوئی ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے نا جس کے اوپر بات کرتے ہیں, ان کی منافق سخت ورڈ ہو جائے گا, میں وہ ورڈ یوز نہیں کرتا وہ ورڈ. میں یہ بات بتاتا ہوں کہ ان کی ڈیو پالیسی کیا ہے. کرونا آیا,
क्या कहते थे दोनों, एक भाई का लीडर कहता था कि मोदी जैसा कर दो, पूरा लॉकडाउन कर दो मोदी जैसा, बिल्कुल इंडिया जैसे लॉक हुआ है। इमरान खान तो पाकिस्तान लोगों की जान का दुश्मन है, कभी कोई भूख से भी मरा है, लोग कोरोना से मरते हैं। दोनों को मौका देते हैं जवाब देने का। 6 महीने बाद अब क्या कह रहे हैं, कोरोना हम जलसा करते हैं तो कोरोना भाग जाता है वहां से, ये कह रहे हैं। तारिक फजल चौधरी साहब जवाब दे दें, उन्होंने काफी आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए हैं सर। वो कह रहे हैं क्या करें कि अगर आपको बिठाएं भी तो आप बात सिर्फ एनआरओ की करते हैं, बाकी जो कौमी इश्यूज हैं उनके ऊपर कंसेंसस तो डेवलप आप करना ही नहीं चाहते सर। सबसे पहली बात तो ये है, जो आपने कहा कि बहुत ज्यादा बातें हुई हैं उनका जवाब देते हैं। झूठी बातों का कितना बंदा जवाब दे, ये तो तैयारी करके आते हैं कि जितना झूठ बोलो इतना बोलो कि सच लगना शुरू हो जाए जी। और अगर कोई बात ना आप ये कहें कि समझ आ रही हो तो उसमें यू टर्न ले लें, ये तो इनका मतलब एक नारा है ना। इन्होंने तो यू टर्न, फ्रॉड, अपनी बात करके। अच्छा तारिक भाई, मैंने सारी बातें गलत की है, इस्तीफे कब दे रहे हैं? मुश्किल सवाल नहीं करना, हम यू टर्न नहीं देंगे इस्तीफों में। अली जवान साहब, यू टर्न नहीं होगा अली, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम यू टर्न वाले लीडर नहीं है। ठीक, इस्तीफे हम सिफारिश करेंगे। तारिक भाई बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, उनको सेनेट अच्छा तारिक फजल चौधरी साहब, एक बात आप मानते हैं, आप एक बात मानते हैं कि इमरान खान ने अभी ये बात नहीं की है, जब वो इक्तदार में नहीं थे वो उस वक्त से ये कह रहे थे कि जब मैं इक्तदार में आऊंगा तो ये जो सेनेट में जो खरीदो फरोख्त होती है उसको रोकूंगा, तो ये कोई उनका अभी मौकफ तो नहीं है, पुराना मौकफ है उनका। देखिए, मैं जाती तौर पे बिल्कुल इसके हक में हूँ। मरियम नवाज भी हैं। 3 साल बाद, हर दफा 3 साल बाद सेनेट का इलेक्शन होता है तो बायसे शर्मिंदगी होता है, सेनेट के लिए भी और पार्लियामान के लिए भी, मुल्क का जो एक सिस्टम है उसके लिए। तो लिहाजा ये तरीका जरूर ऐसा बनना चाहिए कि जिसमें सेनेट के इलेक्शन से, मैं तो ये कहूंगा कि ये गन जो है साफ हो, कि लोग पैसे दे के सेनेटर बन जाए, लेकिन उसके लिए तरीकाकार का जो तयन है वो शो ऑफ हैंड तो हो नहीं सकता, उसकी टेक्निकल वजूहत है। ये तो देखे ना, एक बयान ऊपर से आ जाता है जी। अच्छा तारिक फजल चौधरी साहब, इनके बयान को छोड़ें, आप ये बताएं भी, आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा कि मैं पर्सनली इसका हामी हूँ, मरियम नवाज भी कहती हैं कि मैं भी इसकी हामी हूँ, लेकिन चूंकि आइन इसकी इजाजत नहीं देता, ये हम नहीं करते। जब आपका दौरे हुकूमत था, माशाल्लाह 2-3 दफा दौरे इक़्तिदार आपका आ चुका है, तो बिल्कुल, तो उस वक्त आपने ये तरमीम क्यों नहीं की? जब आप सब हामी थे तो क्यों रुके हुए थे आप? देखें, आप सिर्फ हमारा जो मेरे ख्याल 2 या 2.25 साल का दौर है 97 से 99 तक, वो तो नहीं, पाकिस्तान का कानून बना है उस वक्त से ये निजाम आ रहा है। कई ऐसी चीजें हैं, अब मुल्क में जितनी तरमीम आई है आइन के अंदर, ये भी एक तरमीम आनी चाहिए थी जी, क्यों नहीं आई पिछले दौरे हुकूमत में? आइन में कई ऐसी गुंजाइश मौजूद होती है जिसमें बेहतरी लेके आते हैं, 2 तिहाई अक्सरियत से पार्लियामान के अंदर आइन को तब्दील किया जाता है, इसको भी हो जाना चाहिए था। लेकिन अब इतने कंसेंसस के साथ पार्लियामेंट में लेके आए, उसको डिबेट करें और उसके बाद ऐसा तरीकाकार बनाएं। अगर ये पार्लियामेंट में लाते हैं, उस पर डिबेट करते हैं, तो क्या पीएमएलएन इनको सपोर्ट करेगी ये तरमीम करने में? देखें जी, फिर अगर मगर देखें, सेनेट में चोर दरवाजे बंद हो और नाजायज कमाया हुआ रुपया लगा के लोग सेनेटर बने, उसकी टाइप की जाएगी। मैं जरा पीपल्स पार्टी का जी सुन ले, तारिक ने बात की, मरियम भी ये चाहती हैं, मौलाना साहब नहीं चाहते, बिलावल नहीं चाहते। अच्छा मैं सुन, 3 महीने पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मूव हो गई हुई है, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जा चुकी हुई है, ठीक है। अगर आप हमारे साथ नहीं बैठना चाहते, आप हमें यहाँ तजावीज दे दें, अगर नहीं, और आप समझते हैं आप भी इसके हक में हैं कि पैसा चलता है, पॉलिटिशियंस बदनाम होते हैं, पार्लियामेंट बदनाम होती है, तो हम मूव करते हैं। आपने जिस तरह पीपल्स पार्टी ने एनआरओ लेने के लिए मुशर्रफ के दौर में ऑब्स्टेन किया था, आप ऑब्स्टेन कर, आपने बड़े क्वेश्चंस उठाए हैं, जरा मूसा को मैं टाइम दे दूं जी, जरा आप रिस्पॉन्ड कर दें। बात ना घूम फिर के पीटीआई के पास चीज आ जाती है, एनआरओ। अरे मैं इनको इतनी दफा कह चुका हूं कि एनआरओ इमरान खान साहब दे चुके हैं, वो उन लोगों को एनआरओ दे चुके हैं जिनको ये कस्में खाते थे कि मैं साथ नहीं बिठाऊंगा, ये डाकू है, मान गए ना एनआरओ दे सकते हैं इमरान खान साहब, उनको ये एनआरओ दे चुके हैं, और मान गए ना इमरान खान एनआरओ दे सकते हैं। एक ही चीज साइन करने की रह गई है, वो है इस्तीफा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर बैठ के दोहरा म्यार हमें गिनवा रहे हैं। इमरान खान साहब को ये वादा तो याद आ गया कि मैंने सेनेट का इलेक्शन अपने जो मेरे गंदे अंडे हैं उनको बचाने के लिए मैंने शो ऑफ हैंड करना है। उनको ये वादा याद नहीं आ रहा जो महंगाई का वादा था, जो बिजली के बिल का वादा था, जो 1 करोड़ नौकरियों का वादा था, जो 50 लाख घर का वादा था, वो वादे क्यों नहीं याद आते? ये वादे तो इमरान खान को सारे याद आ गए कि मैंने किसको कहां पर बिठाना है, किसको मैंने कौन सा मुशारत देनी है, किसको मैंने बाहर से लेकर आना है और उसको मैंने कौन सा
सा ऑफिस बिठाना है, किसको मैंने कौन अच्छा सा मूसा, एजेंडा आपको देना लगता है ये किसको मैंने कवर आपको करना लगता है कि ये इनको शो वाले ऑफ वादे हैंड्स की याद बात नहीं आ रहे जो आवाम से करके आए हैं। जी आप ठीक कह रहे हैं, ये आपको लगता है कि ये शो ऑफ हैंड्स 126 दिन के धरने के ऊपर इन्होंने जो वादे किए थे, इमरान खान वो वादे पूरे करे। इमरान खान ने कहा था 50 लोग भी मेरे खिलाफ निकल आएंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब लोगों ने अपने निकल के सर्दी के अंदर, कोविड के अंदर पूरे मुल्क से लोग निकले हैं इसके खिलाफ, और ये जो हमें कह रहे हैं ना धरना दे दें आप, हम आ रहे हैं धरने के लिए और हम लॉन्ग मार्च करने के लिए आ रहे हैं, आप देखिएगा कि क्या होगा। लेकिन प्लीज, ये आपने 13 दिसंबर के लिए भी कहा था, उसके इस बात पहले 8 दिसंबर के लिए कहा था, जो ये कह रहा है हफ्ता दे देंगे, मैं सोचूंगा उसके बाद, सोचने का हम टाइम नहीं देंगे। ठीक है, अच्छा ये बता दें, बातें बहुत आप टेक्निकल डिबेट में चली गई, इमरान खान का लेने निकले थे, देख खुद रहे हैं एक दूसरे से बातें, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इस वक्त। अच्छा मूसा वो कह रहे हैं इस्तीफा आप इमरान खान का लेने निकले थे, वो एक सवाल आखिर में मैं कर रही हूँ, आप इमरान खान का इस्तीफा लेने है कि सेनेट में क्या हो रहा है, ये ठीक है, उसको ऐवान की कोई परवाह नहीं है, एक आम आदमी को वक्त की रोटी कमाना ताल्लुक ही नहीं है इन चीजों से, ठीक है। मुझे ये बता दें कि वो एक पॉइंट इन्होंने रेज किया है सर, एक सेकंड, एक पॉइंट ये रेज हुआ है कि आप लोग तो इमरान खान का इस्तीफा लेने निकले थे ना, आप लोग खुद इस्तीफा देने के ऊपर आ गए हैं, तो ये इस्तीफा लेने से देने तक का सफर आपको कैसा लग रहा है और क्यों ये यहाँ तक पहुंचे? इस्तीफा लेना, इस्तीफा जो है वो हम इमरान खान का ही आएगा, आपकी देखिएगा। और जो बिलावल ने आपको कहा है ना कि हमारा जो इस्तीफे वाली ऑप्शन है वो हमारे पास एटम बॉम्ब है, वो आपको एटम बॉम्ब आने वाले दिनों में उस एटम बॉम्ब की तशरीह मैं करके बताऊंगा, मैं अभी नहीं कर सकता। आप उनकी बात सच ना कर देना, वो कहते हैं वक्त आया तो कहीं ये सारे आधे भाग ना जाएं। हमारे पास जो कार्ड है उसके अलावा इलेक्शन नहीं हो सकता। वो कौन सा है? ये इमरान खान साहब समझते हैं कि ये सिर्फ क्रिकेट के कैप्टन है, पीपल्स पार्टी जमहूरियत की कैप्टन है, पीपल्स पार्टी डेमोक्रेसी की कैप्टन है, पीपल्स पार्टी से ज्यादा आइन का किसी को नहीं पता। पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को आइन दिया है, आइन बनाया है और आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी किया है। इसलिए आप लोग पीपल्स पार्टी को कुछ सिखाने की कोशिश ना करें। अली नवाज अवान साहब वो चैंपियंस हैं। देखें इनके पास आइटम हम नहीं, आजकल इनके पास आइटम नंबर्स हैं। डेमोक्रेसी के तो हम चैंपियंस हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के भी हम चैंपियंस हैं, ये बात मैं आपको भी बता रहा हूँ। ये इस तरह कह देते हैं कि मैं ये करा दूंगा और वो सर मुझे ठीक है, मुझे ना बताएं, आप अपने जो कंपेटिटर्स हैं जरूर इनको, जो सियासी आपके हरीफ हैं इनको आप जरूर बताएं, लेकिन एक बात मूसा ने बिल्कुल ठीक की है, मैं आखिर में आपसे पूछना चाह रही हूँ अली नवाज अवान साहब, IMF के कहने पे आपने अभी बिजली के जो 25% यूनिट का इजाफा कर दिया है, उससे पहले पेट्रोल में आपने 3 रुपए बढ़ा दिए सर, गैस का इधर बहरान शुरू हो चुका है सर्दियों में, इन चीजों के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है, शो ऑफ हैंड्स करा लें, फरवरी में इलेक्शन करा लें, आम आदमी का क्या ताल्लुक है? इस गवर्नमेंट के अंदर हुआ है पारस, और मैं आप जो बात करें बिल्कुल ठीक बात करें, मैं इसे इनकार नहीं कर रहा हूँ। अब देखें ये कह रहे थे कि हमारी 5.8% पे ग्रोथ चल रही थी, और जैसी हमारी हुकूमत आई है, इनके जो 30 मार खान है वो क्या कह रहे थे, IMF के पास जाओ, IMF के पास जाओ। IMF अगर 5.8% पे ग्रोथ चल रही थी, पाकिस्तान तो बहुत फ्लरिश कर रहा था ना जी, शहद और दूध की नहरें बह रही थी, तो आप क्यों कहते थे IMF के पास जाओ? जब IMF के पास जाते हैं, जब मुल्क बैंकरप्ट हुआ होता है, जब $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, 203 स्टेट एंटिटीज लॉस में होती है, नहीं दे पा रहे, आम आदमी की बात करें, पारस ये ठीक बात है, पर इसीलिए हुकूमत दिन रात मेहनत करके ये सारे माफियाज का इलाज कर रही है। आज चीनी वापस आ रही है, आज आटा वापस आ रहा है, सजा हुई? बिल्कुल होगी। अब एक बात बताएं, आटा माफिया को सजा हुई? पहले आज तक कोई कमीशन बना की रिपोर्ट है, सजा होगी? सजा नहीं, अब देखेंगे, आपका काम वो देखें नहीं है, आपका काम एक्शन करना है, माफियाज खुले फिर रहे हैं। आपको पता है, देखिए मैं बड़ा पारस बड़ा जबरदस्त बात है, आप डॉक्टर के पास जाती हैं, पहले आपको डॉक्टर कहता है आपको सिम्टम्स क्या हैं, उसके बाद वो आपको टेस्ट लिख के देता है, जो टेस्ट आ जाता है उसके बाद दवाई देता है। टेस्ट आ गए हमारे पास, अब हम दवाई देने लगे, और दवाई का आप देखें प्री दवाई जो आपके सामने चीजें आ रही हैं, हम धरना देंगे, माफियाज का इलाज कर रहे हैं, माफियाज रो रहे हैं, अभी तो दवाई का हमने सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिखी है, जिस दिन को दवाई खिलाई तो आवाम का ख्याल करें। सर आप अपनी कारकर्दगी से इस महंगाई पे काबू पा लें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उठ रही है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उठ रही है, आपके फॉरेन रिजर्व्स बेहतर हो रहे हैं, फैसलाबाद, गुजरात, आम आदमी की जिंदगी पे पड़ेगा तो आपकी तारीफ की जाएगी, होता जब नजर आएगा तो आदमी का रिलीफ होगा। वक्त की रोटी नहीं कमा सारे चीजें ड्राइव इसी तरफ करेंगे, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, डेफिसिट और हमें ये बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट प्लीज ना बताएं अली नवाज अवान साहब, प्लीज ना बताएं बैलेंस ऑफ पेमेंट, और अब हम आगे बढ़े और ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। मूसा आप लोगों को भी चाहिए कि आप बाकी चीजों को जरा साइड पे करके ना महंगाई के ऊपर ही इस हुकूमत से आवाज बुलंद करें, ताकि